پیارے بچوں، آج میں آپ کو ایک چوٹی کی کہانی سناتا ہوں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک چوٹی جو کے دانے جمع کرنے کے لیے ایک راستے سے گزر رہی تھی۔ اچانک اس کی نظر شہد کے ایک چھتے پر پڑی۔ شہد کی خوشبو سے اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ چھتا ایک پتھر کے اوپر لگا ہوا تھا۔ چوٹی نے ہر چند کوشش کی کہ وہ پتھر کی دیوار سے اوپر چڑھ کر چھتے تک رسائی حاصل کرے، مگر ناکام رہی کیونکہ اس کے پاؤں پھسل جاتے تھے اور وہ گر پڑتی تھی۔ شہد کے لالچ نے اسے آواز لگانے پر مجبور کر دیا اور وہ فریاد کرنے لگی، اے لوگوں، مجھے شہد کی طلب ہے۔ اگر کوئی جوان مرد مجھے شہد کے چھتے تک پہنچا دے تو میں اسے معاوضے کے طور پر ایک جو کا دانہ پیش کروں گی۔ ایک پہرے دار چوٹی ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اس نے چوٹی کی آواز سنی اور اسے تنبیہ کرنے لگی، دیکھو دیکھو، ایسا نہ ہو کہ تم چھتی کی طرف چل دو، اس میں بڑا خطرہ ہے۔ چوٹی بولی، فکر نہ کرو، فکر نہیں کرو، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا ہے۔ پہرے دار چوٹی بولی، وہاں شہد کی مکھیاں ہیں جن کے ڈنک ہیں۔ چوٹی بولی، میں شہد کی مکھیوں سے نہیں ڈرتی، مجھے شہد چاہیے۔ پہرے دار چوٹی بولی، شہد چپکاؤ ہے، تمہارے ہاتھ پاؤں اس میں الجھ جائیں گے۔ چوٹی بولی، اگر یوں ہی ہاتھ پاؤں چپک جایا کرتے تو کوئی شہد نہ کھاتا۔ پہرے دار چوٹی بولی، تم بہتر جانتی ہو، لیکن آؤ میری بات سنو اور شہد کا خیال چھوڑو۔ میں پہرے دار ہوں، سال خوردہ ہوں اور تجربہ رکھتی ہوں۔ چھتی کی طرف جانا بہت مہنگا پڑے گا اور ممکن ہے تم کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ۔ چوٹی بولی، اگر ممکن ہو تو اپنی مزدوری لے لو اور مجھے وہاں تک پہنچا دو۔ اگر تم ایسا کرنے سے قاصر ہو تو زیادہ جوش نہ کھاؤ۔ مجھے کسی سرپرست کی ضرورت نہیں ہے جو نصیحت کرتا ہے، مجھے ایک آنکھ نہیں بھاتا وہ شخص۔ پہرے دار چوٹی بولی، ممکن ہے کوئی ایسا نکل آئے جو تمہیں وہاں تک پہنچا دے، لیکن اس میں کوئی بھلائی نظر نہیں آتی، اور جس کا کام اچھا نہ ہو میں اس میں معاونت نہیں کرتی ہوں۔ چوٹی بولی، خواہ مخواہ خود کو خستہ نہ کرو، میں تو آج ہر قیمت پر چھتے تک پہنچوں گی۔ پہرے دار چوٹی نے اپنی راہ لی اور چوٹی نے دوبارہ آواز لگائی، کوئی ہے جوان مرد کہ مجھے شہد کی چھتے تک پہنچا دے اور معاوضے میں ایک جو مجھ سے وصول کر لے۔ اچانک ایک مکھی کا وہاں سے گزر ہوا۔ مکھی نے کہا، بی چوٹی، تمہیں شہد کی طلب ہے، تمہیں اس کا حق ہے، میں تمہاری آرزو پوری کرتی ہوں۔ چوٹی بولی، اللہ برکت دے، خدا تمہاری عمر دراز کرے، تمہیں کہتے ہیں نا خیر خواہ جانور۔ مکھی نے چوٹی کو زمین سے اٹھایا اور چھتے کے قریب بٹھا کر خود اڑ گئی۔ چوٹی حد درجہ مسرور تھی، کہنے لگی، واہ 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 واہ، کیسی سعادت ہے، کیسا چھتا ہے، کیسی اچھی بو ہے، کیسا عمدہ شہد ہے، کیا مزہ ہے اس میں۔ اس سے بڑھ کر اور کیا خوش قسمتی ہو سکتی ہے۔ چوٹیاں کس قدر بدقسمت ہیں کہ ہر وقت گندم اور جو جمع کرتی ہیں اور کس وقت بھی ان کا رخ شہد کی چھتی کی جانب نہیں ہوتا۔ چوٹی نے ادھر ادھر سے کچھ شہد چاٹا اور آگے بڑھتی گئی، حتیٰ کہ شہد کے اوج میں جا پہنچی، اور اچانک اسے محسوس ہوا کہ اس کے ہاتھ پاؤں شہد سے چھپ گئے ہیں اور اس کے لیے اپنی جگہ سے حرکت کرنا ناممکن رہا۔ چوٹی نے اپنی نجات کے لیے جس قدر کوشش کی، بے نتیجہ رہی۔ تب اس نے فریاد کی، عجب طرح پکڑی گئی ہوں میں، اس سے بڑھ کر اور کیا بدبختی ہوگی۔ اے لوگوں، مجھے نجات دلاؤ،
कोई जवाब मत मुझे इस छत्ते से बाहर निकाले और मैं इसे 2 जौ इनाम में पेश करूंगी। पेशकश पहले थी 1 जौ की, तो अब 2 जौ दूंगी। बी चूटी को इस जहन्नुम से निकलने के लिए यही सूझी। एन इसी वक्त पहरेदार चूटी अपने सफर से वापस आ रही थी। इसे इस हाल में देखकर पहरेदार को बड़ा दुख हुआ और इसने फौरन इसको मुसीबत से निकाला। पहरेदार चूटी बोली, मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात जरूर कहूंगी, ज्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बन जाता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद ना मांगना, क्योंकि मक्खी चूटी की हमदर्द नहीं है और इसके लिए चूटी का खैरखा होना मुमकिन भी नहीं है। इसके बाद बी चूटी ने इसको अपनी गिरह में बांध लिया। इसने तौबा की कि आइंदा कभी शहद की छत्ते की तरफ नहीं जाऊंगी। प्यारे बच्चों, आपको इस कहानी से सबक मिलता है कि लालच बुरी बला है। प्यारे बच्चों, आज की दूसरी कहानी भी बहुत मजेदार है, जो एक भेड़िए, लोमड़ी और मुर्गावी की है। एक हरे भरे जंगल में बहुत से जानवर रहते थे। जंगल का शेर बूढ़ा और अक्लमंद था, जिसकी वजह से जानवर पुरसुकून जिंदगी बसर कर रहे थे। जानवरों की आपस में अलेख सलेख और दोस्ती भी थी। जब फारिग होते तो खूब गपशप करते। लोमड़ी और भेड़िया बचपन से दोस्त थे। जब मिलते खूब बातें होती थीं। एक दिन सरेरा इनकी मुलाकात हुई तो भेड़िए ने कहा, बी लोमड़ी, अब जंगल का शिकार कम हो रहा है। हजरत इंसान ने शिकार करके हम जानवर पर बड़ा जुल्म किया है। अब मुझे देखो, भूखा हूँ, भेड़ नाम की कोई चीज नजर नहीं आ रही। अब तो जंगल के इर्द गिर्द भी भेड़ें कम हो गई हैं। खाने को तरस गया हूँ, कहीं भी शिकार नहीं। बी लोमड़ी ने कहा, क्या मतलब शिकार नहीं मिलता? अगर अकल हो तो शिकार बहुत है। भेड़िए ने कहा, अब जानवर बहुत होशियार हो गए हैं। इतना डरते हैं कि इंसान को देखकर छुपते फिरते हैं, हमें देखकर इधर उधर हो जाते हैं। भी लोमड़ी ने कहा, अच्छा चलो देखते हैं। लोमड़ी ने भेड़िए को साथ लिया और नदी की तरफ चल पड़ी। वहां देखा कि मुर्गाबियां और दूसरे जानवर पानी में तैर रहे थे, अटकलियां और मजे कर रहे थे। लोमड़ी ने भेड़िए को झाड़ियों में छुपा दिया और मुर्गाबियों की तरफ बढ़ गई। लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए मुर्गाबियों से कहा, कैसी हो मेरी दोस्त? एक मुर्गाबी ने कहा, हाँ हाँ अच्छी हूँ भी लोमड़ी, आज खैर है। तुम्हारी चालाकी के बड़े किस्से सुन रखे हैं। आज तुम्हारा दोस्त भेड़िया नजर नहीं आ रहा। भी लोमड़ी ने कहा, वो झाड़ियों में बैठा है और कह रहा है कि मान नहीं सकता। लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, वो क्या कह रहा है? मुर्गाबी ने हैरानी से पूछा। भी लोमड़ी ने कहा, छोड़ो मेरी दोस्त, वो भेड़िया है, उसका क्या कहना। भी लोमड़ी ने कहा, फिर भी वो क्यों झाड़ियों में छुपा है? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। भी लोमड़ी ने मक्कारी से कहा, असल में वो कह रहा है कि मुर्गाबी के पर बड़े सख्त होते हैं। अगर इसका तकिया बनाया जाए तो कोई इस पर सो नहीं सकता, मगर मैं कहती हूँ तुम्हारे पर नरम होते हैं, खूबसूरत होते हैं, इनका तकिया बड़ा नरम होता है। मुर्गाबी ने कहा, तुम्हारा दोस्त भेड़िया गलत कहता है, मेरे पर वाकई नरम और नाजुक होते हैं। मुर्गाबी ने गर्दन पानी में डालकर निकाली। हाँ यही बात है, मैंने भेड़िए से कही थी, मगर वो मानता ही नहीं। कहता है मुर्गाबी के पर इतने नरम नहीं होते जितना के समझ लिया गया है। ये कहकर लोमड़ी वापसी को मुड़ी। मुर्गाबी ने कहा, ऐसे बताओ, इससे बताओ, मेरे पर सबसे नरम होते हैं। मुर्गाबी ने ऊंची आवाज से कहा और पानी में गोता लगाया और 2-4 गज दूर जा निकली, अपने परों को झाड़ा। भी लोमड़ी ने कहा, मैं इसे बता देती हूँ तो कि तुम्हारे पर
तुम्हारे पर बहुत नरम है, बहुत नरम है। लोमड़ी वापस मुड़ी। तो तुम ऐसा करो कि एक पर मुझे दे दो ताकि इसे छू के इसे यकीन हो जाए। मुर्गाबी ने कहा। हाँ ठीक है, मैं तुम्हें अपने दुम के चंद पर देती हूँ। ये कहकर मुर्गाबी अपने नरम पर देने लगी। जो ही लोमड़ी की तरफ बढ़ी, लोमड़ी ने इसे दबोच लिया और 2-4 निवालों में हड़प कर गई और इसके नरमो नाजुक परों का तकिया बनाकर बैठ गई। भेड़िया ये सब हैरत से देख रहा था। ली लोमड़ी बोली, देखा, तुम्हें यहाँ हर वक्त शिकार मिल सकता है, बस अक्ल इस्तेमाल करने की जरूरत है, क्या समझे? ये सुनकर भेड़िया झाड़ियों की ओर से निकला। अपने जिस्म पर मट्टी और कीचड़ लगाकर नदी की तरफ बढ़ गया। अपने जिस्म को पानी से साफ करते हुए एक मुर्गाबी से बातें कर रहा था। भेड़िए ने कहा, मेरी दोस्त लोमड़ी का कहना है। क्या कहती है तुम्हारी दोस्त लोमड़ी? मुर्गाबी ने हैरत से पूछा। मेरी दोस्त लोमड़ी कहती है कि मुर्गाबी के पर बहुत सख्त होते हैं। कुछ देर बाद लोमड़ी को फरफराट की आवाज आई और लोमड़ी समझ गई कि इसके दोस्त ने भी वही हरबा इस्तेमाल किया है। सच है कि खुशामद बुरी बला है। बच्चों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।